Good morning, everyone. So today we are going to see one of the important topic that is pre-scientific psychology. So we all know that psychology has a long past but a very short history. So prior 1879, psychology was considered as a part of the philosophy. Psychology become an experimental psychology, or psychology become a separate discipline after 1879, but when Wilhelm Wundt started reading it by the rise of structuralism. Before that, psychology was considered as a part of philosophy. Okay, so it was pre-scientific psychology. It has not become scientific so far. That is why pre-scientific. Then after this, it will be scientific psychology, where we will understand psychology as a scientific discipline, as a separate discipline, and the current trend is known as contemporary psychology. Okay, so pre-scientific, scientific, and then contemporary psychology. Okay, so in pre-scientific psychology, when psychology was considered as a part of the philosophy, there were various important philosophers who influenced the branch of psychology, who influenced the concept of psychology, which we are reading today in scientific psychology. Okay, so this philosophical influences on the psychology can be studied under two head. Okay, the first one is the ancient Greek philosophers. Okay, these were the ancient Greek philosophers. And the second one is some like after ancient medieval philosophers, you can say them. So these two categories impacted the complete knowledge of psychology. Okay, so in ancient Greek philosophers, important name are Hippocrates, Plato. Okay, you heard about them also. And in medieval philosophers, we will read about René Descartes, John Locke, Thomas Hobbes. These are the important names. Okay, so these medieval philosophers are very, very important. These ancient Greek philosophers are also important because this sets the basic foundation of our psychological subject. Okay, so first of all, we will read about this ancient philosophers, then we will come upon this medieval philosophers. Okay, so now we will start why like how it is started, how everything is started, how philosophy influences the different branches of psychology. Okay, so I think this quote is clear. Psychology is a long past. It has a long past because it comes from, it separated itself from philosophy, and you know that philosophy is very, very ancient branch. Okay, but only a short history. इसकी history बहुत short है. It's we started reading psychology as a separate discipline since 1879. Okay, so its history is only about 120 years old. 120 करीबन साल के ही 120-121 साल की ही इसकी हिस्ट्री रहेगी, और उसमें ही आपने देखा है कि कितने सारे चेंजेस हमारे साइकोलॉजी में निकल के आते हैं. ठीक है, तो ये बहुत फेमस कोट है, आपने पढ़ा भी उसके बारे में. हर्बन एबिंगहॉस नाम है, यहाँ पे छुपा हुआ है. ठीक है, तो अब इसमें हमें मेजरली 4 एंशिएंट ग्रीक इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज हिप्पोक्रेट्स, द सेकंड वन इज सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, these are the ancient Greek influences, ancient Greek philosophers. Okay, these are all the philosophers, these are not psychologists. Okay, so we need to understand their viewpoint only. We will not go into detail that what were their important philosophy, उनकी important philosophy क्या थी, उनकी important information क्या थी, उन्होंने क्या क्या बताया. हमें ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है. ये बहुत डिटेल में आप कहाँ पढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में आप फिलोसफी में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर बहुत सारे बच्चे इन्हीं को ही बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो ये दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है. इन्होंने क्या क्या व्यू पॉइंट बताए वो हमारे सब्जेक्ट मैटर है, सो दैट वी कैन राइट अ गुड आंसर. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एक आंसर लिखना है 150, 200, 250 वर्ड्स, दैट्स इट. ओके, तो इनके जो व्यू पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सिर्फ उन्हीं को ही हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द हिप्पोक्रेट्स, then Socrates, Plato, and Aristotle is the last one. After the death of the Aristotle, these Greek influences like vanishes from the society, and then there was the rise of some modern philosophers, जिनके बारे में हम next पढ़ेंगे. ठीक है, so the first name is Hippocrates. पहला जो नाम निकल के आता है वो हिप्पोक्रेट्स का निकल के आता है. Now Hippocrates has talked about 4 important things. 4 important चीजें इन्होंने बताई हैं. The first one is humoral theory and temperament. Second one is importance of observation, mind-body connection, importance of environment. Okay, so before going into this, I also want to tell you one more point कि इन ये जितने भी फिलोसफर होते थे,
ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट ऑफ डिबेट है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जैसे साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन दैट वेदर अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज इनेट और एक्वायर्ड, वेदर इट इज इम्पैक्टेड बाय नेचर or nurture, whether it is because of your genes or environment. Okay, in the same way we will study that whether any behavior is already determined or whether it is because of your free will. ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो whether it is because of mind or body, what is the connection between mind and body, whether mind and body are same thing or they are different thing. तो इन डिबेट को ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अभी दिस एंड अंडर दिस द मोस्ट फेमस डिबेट इज माइंड बॉडी प्रॉब्लम डिबेट। ठीक है, कि माइंड बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, आर दे सेम एंटाइटी और आर दे डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटी। दिस डिबेट विल स्टार्ट विद रेने डेस्कार्ट, अभी जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ कुछ बताया था कि माइंड बॉडी का कनेक्शन क्या होता है, इनका भी हम देखेंगे। तो सब लोग जो फेमस डिबेट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे हिप्पोक्रेट्स आते हैं तो इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी ह्यूमरल थ्योरी थी। ही टॉक अबाउट दैट अवर ह्यूमन पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, 4 फ्लूइड होते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 फ्लूइड बताया कि इन 4 फ्लूइड से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। दीज फ्लूइड आर ब्लड, फ्लेग्म PHLEGM, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 4 फ्लूइड। ये 4 फ्लूइड से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ओके, तो ये 4 फ्लूइड बोल लीजिए आप इनको, या 4 लेवल ऑफ टेम्परामेंट ही बोल सकते हैं। ओके, नाउ इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस अगर होगा आपकी बॉडी में, देन यू विल बी हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी ठीक रहेगी if you're having a balanced approach of all these 4 fluid। जहां पर किसी एक फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर वो हावी होना शुरू हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चीयरफुल। ठीक है, आप चीयरफुल रहेंगे। इन द सेम वे फ्लेग्म इज रिस्पॉन्सिबल, इट विल कीप यू काम, आपको शांत रखेगा, ये काम टेम्परामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, येलो बाइल अगर ज्यादा है तो यू विल फील इरिटेटेड। ओके, एंड ये ज्यादा है तो यू विल फील सैड और मेलनकोलिक, आपकी इस तरीके की फीलिंग आ जाएगी। सो इन दिस वे दीज 4 फ्लूइड्स आर कंट्रोलिंग योर पर्सनैलिटी। ओके, अगर इनमें किसी की भी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, देन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस क्वांटिटी को ठीक करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल रूट ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, ओके, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी तो होता है ना साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी हैज रिलेशनशिप विद एवरीथिंग। साइकोलॉजी हैज रिलेशनशिप विद हिस्ट्री आल्सो, सोसाइटी आल्सो, इकोनॉमिक्स आल्सो, बायोलॉजी आल्सो। तो आप देखेंगे ना, इन्होंने एक बायोलॉजिकल रूट बताया। ठीक है, कि अगर अगर मान लीजिए कोई चेयरफुल है तो उसके अंदर ब्लड फ्लूइड ज्यादा है, कोई काम है तो उसके अंदर ये ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड इट आल्सो इंपैक्टेड अ लॉट टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया होगा या आप पढ़ेंगे पर्सनैलिटी चैप्टर में, देयर इज वन अप्रोच, टाइप एंड ट्रेट अप्रोच। ओके, सो अंडर टाइप अप्रोच वी रीड अबाउट हिप्पोक्रेट्स आल्सो, उसमें हम हिप्पोक्रेट्स को भी कोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने टाइप बताया कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी कैसी हो सकती है, दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप एंड दिस टाइप। और अगर इनका डिसबैलेंस होगा, so this could be responsible for any kind of mental disorder in your body। ठीक है, this is the first viewpoint of Hippocrates। next he also talk about the importance of observation। इन्होंने observation की importance के बारे में बताया। ठीक है, now he shifted his focus from data driven। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करो, उसी में बात की जाती थी। इन्होंने बोला कि सिर्फ डेटा को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू डू सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आल्सो। ठीक है, आप लोगों को पढ़िए, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके बिहेवियर को समझिए। ठीक है, तो जो बिहेवियर को समझने वाली बात थी, ऑब्जर्व करने वाली बात थी, वो भी हमारी यहां से निकल के आती है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज माइंड बॉडी कनेक्शन। ठीक है,
अब इन्होंने माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बात की। पहले क्या होता था, जब हम प्री साइंटिफिक की बात करें, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर देन इट वाज कंसीडर्ड दैट द रीजन फॉर दिस मेंटल डिसऑर्डर इज एनी सुपरनेचुरल पावर, कोई डीमन है या कुछ और है, उसकी वजह से उसको डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एवरी डिसऑर्डर हैज अ बायोलॉजिकल रूट। अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, देन देयर मस्ट बी सम इम्बैलेंसेस आइदर इन योर माइंड और इन योर बॉडी। या तो आपके फिजिकल स्पेस में दिक्कत है या आपके मेंटल स्पेस में दिक्कत है, या फिर दोनों जगह कोई ना कोई इश्यू है, तभी आपको कुछ डिसऑर्डर हो रहा है। Okay, so in this way they also talk about that mind body connection is there, and due to this connection you are feeling happy, you are feeling sad, you are feeling depressed, you are feeling melancholic। ठीक है, इस माइंड बॉडी कनेक्शन की वजह से ही आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी निकल के आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट ही टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट आल्सो। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंट, लाइक एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, तो हमारी जो भी हेल्थ होगी, अवर साइकोलॉजिकल हेल्थ, अवर फिजिकल हेल्थ इज आल्सो इम्पैक्टेड बाय द एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कहां पर रह रहे हैं। ठीक है, सो दैट विल आल्सो इम्पैक्ट योर पर्सनैलिटी अ लॉट। ओके, सो वी रीड इन पेपर 2 देयर इज अ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ग्रुप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको बेटर रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, उनके पास बेटर एनवायरनमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन होता है उनके साथ में, है ना। तो ये बात आप यहां से कह सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि साइकोलॉजी के काफी सारे चैप्टर्स में आपको इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट आई वांट दैट यू फील कनेक्टिविटी बिटवीन द टॉपिक्स, आपको ये कनेक्टिविटी समझ में आए कि कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज को अलग अलग टॉपिक से। ये कनेक्टिविटी अगर आपको समझ में आ जाती है देन यू विल फील द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को फील कर पाएंगे और आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले थे जिन्होंने ये 4 पॉइंट बताए। ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग इन दिस क्लास ओनली। ओके, 4 ह्यूमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन, एंड ही आल्सो टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, हिप्पोक्रेट्स के अलावा फिर 3 ग्रीक फिलोसोफर्स और आते हैं। ओके, इन्होंने फाउंडेशन को लेट डाउन कर दिया, इन्होंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम इज सोक्रेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने भी काफी हद तक साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, अब जो सोक्रेट्स हैं इन्होंने भी अपनी कुछ 4 चीजें बताई हैं। द फर्स्ट वन इज सोक्रेटिक मेथड, द सेकंड वन इज नो थाईसेल्फ, द थर्ड वन इज वर्च्यू एंड मोरालिटी, एंड द फोर्थ वन इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ओके, सो ही आल्सो टॉक अबाउट दीज 4 थिंग्स। अब इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, पहला क्या बोल रहे हैं ये, द सोक्रेटिक डायलॉग, अ डायलॉग फॉर अनकवरिंग ट्रुथ। ठीक है, सोक्रेट्स क्या बोलते हैं कि अगर कभी भी आपके साथ कोई इश्यू होता है तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, या फिर कोई भी चीज होती है हमें उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, ही बिलीव इन डायलॉग, डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो कोई किसी भी कंसेप्ट के पीछे अगर आपको ट्रुथ पता करना है तो डायलॉग कीजिए, बात कीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक इलॉजिकल थिंकिंग, देन क्वेश्चन अबाउट इट, दैट व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, देन क्वेश्चन अबाउट इट, व्हाई आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप डिप्रेस फील क्यों हो रहा है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। इस तरीके के क्वेश्चन कीजिए कि अगर मैं इस स्टेट में हूं तो क्यों हूं, क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसी सिचुएशन थी जो मुझे यहां पर लेकर आई है। ठीक है, हाउ कैन आई इंप्रूव अपॉन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इफ आई हैविंग एनी illogical thought, then how, why this illogical thought coming into my mind. Okay, am I living in such kind of environment, am I living in the negative environment, तो मुझे ये illogical thought क्यों आ रहा है। such type of open ended question should be there. Okay, and you will find the relevance of this in various kind of therapies which will lead in paper 2. For example, there is one therapy, cognitive behavioral therapy. Okay, cognitive behavioral therapy we will lead in paper 2 also. In cognitive behavioral therapy, what is the method? The therapist asks question with you, आपके साथ डायलॉग करता है, आपके साथ बातचीत करता है और आपके इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जबकि आपके माइंड में नेगेटिविटी है, इरेशनल थॉट है,
जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, उसको हटाने की कोशिश करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। सो सीबीटी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इन द सेम वे, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विक्टर फ्रैंकल। इनकी एक बुक भी आती है। विक्टर फ्रैंकल इज एक्चुअली अ हॉलोकास्ट सर्वाइवर। ये एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर है एंड इनकी एक बुक भी आती है बाय द नेम ऑफ लोगोथेरेपी। ठीक है, इन्होंने अपनी खुद की एक लोगोथेरेपी दी थी, उसके थ्रू उन्होंने बताया था कि हम कैसे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। सो ये हॉलोकास्ट सर्वाइवर थे, वहीं पर ही उन्होंने बुक लिख दिया था। इन्होंने भी ये बताया था कि हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, देन वी शुड आस्क क्वेश्चन विद अवरसेल्फ। हमें अपने आप से क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट निकल के आता है जो आगे साइकोलॉजी को काफी ज्यादा इंस्पायर करेगा। इन द सेम वे, नो थाई सेल्फ मीन्स आपको अपने आप को जानना है। ठीक है, अपने आप को जानिए। ओके, वॉट यू आर फ्रॉम इनसाइड। ओके, ठीक है, तो अ जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से फिर अलग अलग सेल्फ के कंसेप्ट निकल के आते हैं। अलग अलग सेल्फ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी, ओके, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। ओके, ये कंसेप्ट क्यों है? ताकि आप अपने आप को समझ सके, है ना। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आपका एनसीईआरटी में भी चैप्टर है। ओके, उसी से ही सेल्फ को जानेंगे, फिर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी निकल के आएगी। ठीक है, सोशल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, ये सब हम पढ़ेंगे ताकि आप अपने आप को अवेयर कर सकें। तो ये भी कंसेप्ट निकल के आया। द थर्ड वन इज वर्च्यू एंड मोरालिटी का प्रिंसिपल भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमें एक अच्छी लाइफ बनानी है। तो इन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि एक इंडिविजुअल को खुश कैसे रहना है, इन्होंने इसके बारे में बात की कि एक सोसाइटी खुश कैसे रह सकती है। ओके, सो यू शुड आल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू एंड मोरालिटी। आपको एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी है, आपको एक अच्छी लाइफ बनानी है ना। और इसी लाइफ को बनाने के लिए आप क्या करें, आप सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रिमूव द प्रेजुडिसेस, रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट अ गुड लाइफ कैन बी बिल्ट, एक अच्छी लाइफ बन सके। ठीक है, द लास्ट वन इज ही फोकसेस अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग आल्सो। ठीक है, तो ये तो सिंपल है ना। हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, रीजनिंग करनी चाहिए, है ना। हमें वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन पूछने हर एक चीज में, क्रिटिकल थिंकिंग करके अपने माइंड को और ज्यादा एक्टिवेट करना है। ठीक है, रीजनिंग पे फोकस करना है कि ये चीज क्यों हुई। वी डोंट जस्ट रिलाई अपॉन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप उसमें और डीप में जाइए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जितना आप रीजनिंग करेंगे, उतना आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द 4 पॉइंट, और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे इन्होंने साइकोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया हिप्पोक्रेट्स, द सेकंड वन इज सोक्रेट्स, द थर्ड वन इज प्लेटो। ठीक है, अब प्लेटो और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल, ये दो चीज और बोलते हैं, अपने कंसेप्ट तो देंगे ही देंगे। प्लेटो बोलते हैं ड्युअलिज्म के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बोलते हैं मोनोइज्म के बारे में। ठीक है, ड्युअलिज्म क्या होता है? ठीक है, ड्युअलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जैसे कि माइंड और बॉडी। ठीक है, जिसके बारे में हम डिबेट में पढ़ेंगे आगे जाके आगे। अभी आप समझ लीजिए इससे इतना होता क्या है। ड्युअलिज्म यानी कि माइंड एंड बॉडी, दीज आर टू सेपरेट एंटाइटी, दो एंटाइटी हैं ड्युअलिज्म। ठीक है, ओके, तो माइंड एंड बॉडी बोथ आर सेपरेट एंटाइटी। ऑन द अदर हैंड मोनिज्म जो होगा वो ये बोलेगा कि दोनों सेपरेट नहीं है, दे आर इनसेपरेबल। ठीक है, दोनों एक ही है, ये मोनिज्म होता है। ओके, अब ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं ये आपको रेने डेस्कार्ट्स बताएंगे, जो हम मॉडर्न फिलोसफर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने कुछ कंसेप्ट दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने पहला कंसेप्ट दिया ट्राइपार्टाइट सोल के बारे में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट विच वाज गिवन बाय प्लेटो। द सेकंड वन इज ड्युअलिज्म एंड द थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्लेटो सोल के बारे में क्या बात करते हैं? अब देखो यहां से क्या हो रहा है ना, यहां से सोल के बारे में बात करना शुरू हो गया। तो अगले जो हमारे हैं एरिस्टोटल, ये भी सोल के बारे में बात करेंगे। ओके, अब सोल क्या है फिलोसफी में? सोल क्या है? साइक। साइक का मतलब सोल है। अगर फिलोसफिकल डेफिनेशन आप देखो तो साइकोलॉजी इज साइक प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, साइक का मतलब होता है सोल। तो यहां से क्या हुआ, सोल के बारे में बात करना शुरू हो गए।
ठीक है, तो पहली बार इन्होंने ट्राइपार्टाइट सोल का कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बताया कि तीन तरीके की जो हमारी साइक होती है, हमारी जो सोल होती है, वो तीन तरीके के फंक्शन करती है। द फर्स्ट वन इज यू कैन से रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। ठीक है, रीजन में आप क्या करते हो, आप रीजनिंग, आप लॉजिकल पर जाओगे, आप लॉजिक पर जाओगे। आपका जो साइक है, आपका जो सोल है, आपका लॉजिक ढूंढेगा। कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, रीजनिंग पे आप जाओगे, ओके, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप जाओगे। स्प्लिट में क्या होगा, स्प्लिट में आप विद द हेल्प ऑफ योर सेंसेस उस चीज को रिसीव करोगे। ठीक है, तो स्प्लिट में सेंसेशन वाली प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सेंसेशन, परसेप्शन, आप अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। रीजन में आप अपना लॉजिक लगा रहे हो। एपिटाइट क्या है, एपिटाइट इज रिलेटेड टू योर डिजायर। ये आपके डिजायर से रिलेटेड है, ये आपके इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके के इन्होंने तीन तरीके के ट्रिपिटाइट सोल बताए। द फर्स्ट वन इज रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। रीजन यानी कि लॉजिक, स्पिरिट यानी कि सेंसेशन, एपिटाइट यानी कि डिजायर और इंस्टिंक्ट। ओके, अब आप देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ये किसी ना किसी से लिंक करता है। किससे लिंक करता है, इट लिंक्स विद द कंसेप्ट ऑफ सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। उन्होंने भी तो एक ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो वही समवट रिलेटेड टू दैट ओनली। ठीक है, तो यहां से सिगमंड फ्रॉइड ने इंस्पिरेशन ली और उन्होंने अपना एड ईगो सुपर ईगो कंसेप्ट बताया। कार्ल जंग ने भी अपना यहां से लिया था। इन्होंने भी इंफॉर्मेशन ली और उन्होंने भी अपने अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में बताया। ठीक है, तो मेजरली इन्फ्लुएंस सिगमंड फ्रॉइड का आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, है ना। इन द सेम वे थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या बोलती है, इन्होंने ये बोला कि हमें सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमने नॉलेज को ले लिया, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज को लेने के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उस नॉलेज को अपने अंदर स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर उस नॉलेज को हम अपने अंदर बिठाते कैसे हैं। ठीक है, रखते कैसे हैं नॉलेज को, नॉलेज का एक्चुअल गेन कैसे करते हैं। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कुछ पढ़ लिया, समझ देख लिया, हो गया काम। उसको समझना, उसको इनहेरेंट करना, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही कंसेप्ट बाद में फिर जीन पियाजे की थ्योरी आती है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, वही वो भी यही बात करते हैं कि कैसे आप नॉलेज को एसिमुलेट करते हो, कैसे आप नॉलेज को एकोमोडेट करते हो। ठीक है, तो कॉग्निटिव भी तो इसी की बात करते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी भी तो इसी की बात करती है। ओके, सो इन दिस वे हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग आल्सो इन्फ्लुएंस द अदर पीपल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो। तो अभी तक हमने तीन लोगों के इन्फ्लुएंस पढ़ लिए। द फर्स्ट वन इज हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, सोक्रेट्स, प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स ने बताया ह्यूमर, चार ह्यूमर के बारे में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जर्व करेंगे और डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। माइंड बॉडी सिचुएशन के बारे में बताया कि माइंड बॉडी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसऑर्डर के लिए, और इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है ये इन्होंने बताया। जैसे कि मैंने सोक्रेट्स, इन्होंने सोक्रेटिक डायलॉग की बात की, अपने आप को जानिए। ठीक है, थाई योरसेल्फ, ओके, उस पर बारे में बात की, क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात की, वर्च्यू एंड रियलिटी के बारे में बात की। प्लेटो ने ट्राइपार्टाइट सोल के बारे में बात की, ओके, रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट ये कंसेप्ट बताया, ड्वेलिज्म का कंसेप्ट बताया, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होती है। नाउ द लास्ट वन इज एरिस्टोटल, ये सबसे लेटेस्ट है। तो इन्होंने कुछ दो तीन बातें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, इन्होंने तीन कंसेप्ट बताए। अब इन्होंने क्या किया, प्लेटो से क्या हुआ था, प्लेटो के बाद सोल के बारे में बात होना शुरू हो गई। एरिस्टोटल ने उसी कंसेप्ट पर फोकस किया, इन्होंने सोल के कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया, और इन्होंने अपने तीन कंसेप्ट बताए, मेटाफिजिकल पोजीशन, डी एनिमा और लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब मेटाफिजिकल पोजीशन क्या होती है, मेटाफिजिकल यानी कि मेटाफिजिकल टर्म क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। देखिए, एक तो फिजिकल टर्म होते हैं, ठीक है, आप फिजिकली जिन चीज को देख पाते हैं। मेटाफिजिकल यानी कि बियॉन्ड फिजिकल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसे कंसेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते ना। तो दिस इज अवर मेटाफिजिकल पोजीशन। ठीक है, अब मेटाफिजिकल पोजीशन में एरिस्टोटल क्या बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो बनता है उसमें एक तो फॉर्म होता है और एक मैटर होता है। उसका फॉर्म ऑफ मैटर दोनों इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को समझने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को समझने के लिए फॉर्म और मैटर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इनको हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। दे आर नॉट इनसेपरेबल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक की बात कर रहे हैं, मोनोइज्म। पहले वाले क्या कर रहे थे, ड्युअलिज्म की बात कर रहे थे। तो इन्होंने मोनिज्म की बात की। इन्होंने बोला कि फॉर्म और मैटर साथ में बनेंगे, साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तभी हम किसी की क्वालिटी को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है। ठीक है, डॉग क्या हो गया, एक फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये किससे मिलके बना है, ये फ्लैश से मिलके बना है, ये बोन से मिलके बना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बोन, ये इसका मैटर हो गया। अब इन दोनों को साथ में समझना पड़ेगा, साथ में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम डॉग एक्चुअली में क्या करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, बार्किंग या कुछ और भी जितनी भी क्वालिटी है, तब हम उसको समझ पाएंगे। अगर हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे तब हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं निकल के आएगी। तो फॉर्म और मैटर दोनों को हमको साथ में पढ़ना है, इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। दे आर नॉट इनसेपरेबल, दे आर सिंगल एंटाइटी। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने मोनिज्म की बात की कि ये साथ में पढ़े जाते हैं। ठीक है ना। ओके, इन द सेम वे फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी बर्ड है तो उसकी विंग्स है। ठीक है, अब विंग्स क्या हो गया, उसका फॉर्म हो गया। अब ये जो विंग्स है ये भी किसी से मिलकर बनी होंगी, मैटर से मिलकर बनी होंगी। लेकिन बर्ड एक्चुअली में क्या करता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उनको हम कब समझ पाएंगे, जब उसका फॉर्म और मैटर दोनों को हम साथ में देखेंगे। तो इनको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, सो दिस इज मेटाफिजिकल पोजीशन। नेक्स्ट इज डी एनिमा। डी एनिमा इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने सोल के बारे में बहुत एक्सटेंसिव होकर बात की। ठीक है, इन्होंने सोल के बारे में बताया, और इन्होंने क्या बताया कि सोल यानी कि साइक हमारा जो हो गया, इसके बारे में इन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि किसी भी सब्जेक्ट में सोल को या साइक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्होंने यहां से बताया कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक सुपीरियर होते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विथ एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के बात जो हम लोग जो है, हमारे पास रीजनिंग करने का सोल है, हम रीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हमको डिफ्रेंशिएट किया एनिमल से। ओके, और उन्होंने बोला कि ह्यूमंस को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एनिमल को पढ़ें, उनकी स्टडी को रेप्लिकेट करते हैं, जो साइकोलॉजी में होता भी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो सोल होती है ये हर एक जगह पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर रीजन करने की सोल है, हम रीजन कर सकते हैं, हमारे अंदर रीजनिंग पावर है। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या है, वेजिटेटिव सोल है। ठीक है, दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर क्या है, न्यूट्रिटिव सोल है, न्यूट्रिटिव सोल बोलते हैं उसको। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेंस ले सकते हैं, परसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वाले काम सिर्फ और ह्यूमंस कर सकते हैं। तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दिस इज डी एनिमा। ओके, इसको लेकर इनकी अलग बुक भी आती है, और इसी कंसेप्ट को हम देखेंगे कि बाद में जो कॉन्शियसनेस पर जितनी भी रिसर्च हुई है, न्यूरो साइंस पर जितनी भी रिसर्च हुई है, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में जितनी भी रिसर्च हुई है, वो सारी की सारी रिसर्च आर इंस्पायर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ डी एनिमा ओनली। ठीक है, एंड द लास्ट प्रिंसिपल विच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। इन्होंने क्या बोला कि हम किसी भी इंडिविजुअल को समझते हैं तो हम एसोसिएट करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर टू इंडिविजुअल, पॉल एंड पीटर, ये दो लोग हैं। ठीक है, अब ये साथ में आए हुए हैं, तो आप इनको कैसे पढ़ोगे, अब पॉल को आप समझोगे, पॉल को अगर आप समझोगे तो कैसे समझोगे, पॉल को आप समझोगे दैट वेदर पॉल इज इन सिमिलर इन क्वालिटी विद द पीटर, और लाइक अपीयरेंसेस में सेम है क्या जैसे पीटर है, या फिर पॉल पीटर से अलग है, या पॉल और पीटर एक जैसे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एसोसिएट कर रहे हो उसको पॉल को पीटर के साथ में। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको एसोसिएट करते हो बाय डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल। ठीक है, आप देखोगे कि कॉन्ट्रास्ट है क्या, उससे अलग है क्या। ठीक है, उससे अलग है, उससे कंपेयर करोगे, उससे सिमिलर है तो उसको सिमिलरिटी करोगे, एसोसिएट करके आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन। जैसे आपको मान लीजिए कोई नई नॉलेज आपको मिलती है, तो उस नई नॉलेज को आप देखोगे कि वेदर इट इज सिमिलर विद द ऑलरेडी प्री एक्वायर्ड नॉलेज जो मेरे पास ऑलरेडी है, और वेदर इट इज डिफरेंट, देन यू विल हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज। दिस इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो इन्होंने हमारे अलग अलग प्रिंसिपल दिए, जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी इन्होंने दिया। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन्होंने दिया। ठीक है, इन सारे प्रिंसिपल को आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ओके, और एक अलग से स्कूल भी आता है एसोसिएशनर्स का स्कूल, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जो पेवलोव की थ्योरी है,
जो स्किनर की थ्योरी है वो भी तो इसी की बात करते हैं कि कैसे एसोसिएट होती है चीजें। ओके, एस आर में एसोसिएशन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एसोसिएशन, तो वो भी इनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी अरिस्टोटल का आता है। तो इसके साथ क्या हो गया, हिप्पोक्रेट्स हो गया, प्लेटो, सोक्राट्स और एरिस्टोटल, ये हमारे 4 एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं जो साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ एरिस्टोटल साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें करना थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती हैं। फिर और मॉडर्न फिलोसफर्स निकल के आते हैं, जिसमें मेजरली हम पढ़ेंगे रेने डेस्कार्ट्स के बारे में, जिन्होंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में काफी कुछ बताया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ एम्पिरिज्म के बारे में। ओके, देन आफ्टर एम्पिरिज्म वी विल फोकस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म। देन लेटर ऑन वी लीड अबाउट द कंसेप्ट और द स्कूल ऑफ नेटिविज्म जो इमैनुअल कांत ने दिया था। तो मॉडर्न फिलोसफर में रेने डेस्कार्ट, इमैनुअल कांत, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये सारे लोग आ जाते हैं जो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि एंशियंट ग्रीक इन्फ्लुएंसेस कौन कौन थे और उनका इन्फ्लुएंस क्या क्या था। ठीक है, नाउ वी विल मूव अबाउट टुवर्ड्स द मॉडर्न फिलोसफर्स और उनको हम डिटेल में देखेंगे।